Hello everyone. Today we are going to learn about the corporate governance theories. Okay, so in the last class we have studied the corporate governance meaning, importance, why we need corporate governance, and the pillars of the corporate governance, right? So today we'll learn theories. It's very important and it will come in the both MCOM exams also, even in the BCom also, and even in the UGC NET exams also. Okay, let's start. So theories of corporate governance, here we can see that there are numerous theories of corporate governance that have addressed the challenges of the firm and company governance at various times. So there are so many theories we'll come across in the upcoming slides. So these theories all have addressed the challenges of the firm and the company governance at various times. So corporate governance means it's a process of making decision, putting those decision into action in a large organization. So corporate governance को क्या होता है, एक ना प्रोसेस बनाते जो डिसीजंस बनाते हैं और उस डिसीजन को उसको एक्शन में लाने को हम लोग यहाँ पे इन एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन में लाते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं. ठीक है. सो देर आर सेवरल थियरीज दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द बिजनेस वाइल द बिजनेस इज ऑपरेटिंग. सो जब कंपनी ऑपरेट करती होती तो बहुत सारे यहाँ पे व्हाट रिलेशनशिप्स यहाँ पे आते हैं, जो सेवरल थियरीज के बहुत सारे थियरीज में आते हैं, जिसमें हम लोग एक बिजनेस के साथ और एक स्टेक होल्डर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो वो हम लोग इस थियरीज में देखेंगे. तो फर्स्ट वन विल सी, यहाँ पे देखेंगे थियरीज कौन से हैं. सो विल सी द थियरीज हियर: एजेंसी थियरी, स्टीवर्डशिप थियरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थियरी, स्टेक होल्डर थियरी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट थियरी, पॉलिटिकल थियरी. सारे थियरी हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन. सो नेक्स्ट इज एजेंसी थियरी. तो एजेंसी थियरी क्या होता है? एजेंसी तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एजेंट, राइट. तो एजेंट का काम क्या होता है? जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी बात मानना, जो वो बोलते हैं वो करना, राइट. तो यहाँ पे एक एजेंसी थियरी क्या करती है? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताती है. तो प्रिंसिपल हियर हायर्स द एजेंट. सो हायर्स एजेंट कौन होता है? यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट. तो प्रिंसिपल कौन होते हैं? ऑब्वियसली इट इज शेयर होल्डर्स, राइट. प्रिंसिपल कौन होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे और एजेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट शेयर होल्डर्स हायर्स द एजेंट एंड these agents work, these board of directors work on behalf of the principal, right, performs on behalf of the principal. So they need to even look after the benefits of the principal and they even look for their own self interest also. So उनका self interest क्या है वो उन पे भी ध्यान रखते हैं. ठीक है. तो ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है, इसकी थियरी हम लोग पढ़ते हैं. तो थियरी क्या कह रहा है? एजेंसी थियरी, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल सच एज कंपनी शेयर होल्डर्स, राइट, एंड एजेंट इज डिफाइंड बाय द एजेंसी थियरी such as directors of the company. So principal is here shareholder and the agent is obviously directors of the company. According to this theory, the company owners hires the agent to do the work. So who is the company's owner? Obviously shareholders, right. They hires the agent to do the work of the company because shareholders cannot directly control the all the management work, right. Directors or the managers who are shareholders agents delegates the work of running the business to the principals. So here what they do, agents the principal delegates the work to the agents to run the business and the agents are expected to act and make decision in the best interest of the principal by shareholders. जो भी decision लेते हैं वो सब on behalf of किसके लेना है? प्रिंसिपल के behalf पे, प्रिंसिपल के हित में decisions लेना है कि इनका भला हो, राइट. तो प्रिंसिपल्स कौन है? शेयर होल्डर्स का भला हो यहाँ पे. ऑन द कॉन्ट्ररी एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस दैट आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल. जो प्रिंसिपल्स के हित में नहीं है, जो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, उनको वो सब डिसीजन को इनको नहीं लेना है. एजेंट में कम अप टू द सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑपॉर्चुनिटिक्स बिहेवियर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एक्सपेक्टेशन. सो एजेंट्स यहाँ पे थोड़ा कभी कभी ना इनका सेल्फ इंटरेस्ट भी देखते हैं और अपॉर्चुनिटिस्टिक बिहेवियर होना चाहिए ताकि ये कोई भी प्रिंसिपल के एक्सपेक्टेशन से कम, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना तो ये खरे होना चाहिए एजेंट्स उनके, लाइक उनके क्या बोलते हैं
लाइक फॉर एग्जांपल कि विश्वास होना चाहिए कि भाई एजेंट्स इतना बिहेवियर रखेंगे, इतना बेनिफिट करेंगे कि प्रिंसिपल को कभी निराश नहीं करेंगे, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल इज द की फीचर ऑफ एजेंसी थियरी। तो यहाँ पे मेन क्या है, एजेंसी थियरी को यहाँ पे मेन की फीचर क्या है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। क्योंकि ऑलवेज आपको पता है एक कंपनी ओनरशिप अलग है, यहाँ पे कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप, राइट। सो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनर कोई और होता है और कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, तो ये एक एजेंसी थियरी का एक की फीचर है। पीपल और एम्प्लॉयज आर हेल्ड अकाउंटेबल इन देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन अकाउंटेबल होंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयज होंगे। अकॉर्डिंग टू द थियरी एजेंट्स प्रियोरिटी कैन बी करेक्टेड यूजिंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। अगर इन एजेंट्स को अच्छे से प्रियोरिटी, मतलब ये प्रिंसिपल्स क्या करेंगे, इनको एजेंट्स को अच्छा रिवॉर्ड देने, मतलब ये प्रिंसिपल के हिसाब से काम करने के लिए इनको रिवार्ड्स, या फिर अगर ये काम सही नहीं करेंगे, डिसीजन सही नहीं कर रहे, तो फिर इनको पनिशमेंट के हिसाब से इनको प्रियोरिटीज़ मिली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको एजेंसी थियरी समझ में आई होगी। यहाँ पे मेन रिलेशनशिप एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है, और यहाँ पे सारे डिसीजन जो भी होता है वो किन के बिहाफ में लेना है, प्रिंसिपल के बिहाफ में लेना है, और इनका सेल्फ इंटरेस्ट भी देखा जाता है, और जो भी शेयर होल्डर्स के हित में इनको सभी डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। तो ये है एजेंसी थियरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टीवर्डशिप थियरी। तो स्टीवर्डशिप थियरी क्या होती है, तो स्टीवर्डशिप यहाँ पे, तो स्टीवर्ड किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टीवर्ड्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एम्पावर ट्रस्ट, तो ये लोग यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं किस पे, स्टीवर्ड्स पे। जो यहाँ पे इनका काम क्या है, प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इनका काम मेन क्या है, प्रोटेक्ट करना और मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना इनकी मेन ड्यूटी होगी। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स प्रॉफिट एंड रिटर्न, ये क्या ध्यान रखेंगे, शेयर होल्डर्स इनका प्रॉफिट हाई हो और रिटर्न भी इनकी ज़्यादा हो। स्टीवर्ड्स को क्या चाहिए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए। अगर मोटिवेशन ना हो तो ये ऑब्वियसली काम कैसे करेंगे, राइट। तो इंट्रिंसिक अंदर ही इनकी खुद के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि हमारी कंपनी बहुत आगे चले, हमारी कंपनी हमेशा मतलब लाइक ग्लोबलाइज्ड हो, राइट। तो और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इनकी ये होनी चाहिए कि भी खुद के अंदर भी होना चाहिए, हमारी कंपनी आगे बढ़े, मैं कुछ करूँ, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ताकि शेयर होल्डर से हो या फिर कुछ रिवॉर्ड जैसे हो, ये थोड़ा बहुत मोटिवेशन इनको चाहिए, क्योंकि ये स्टीवर्डशिप की काम कर रहे हैं, तो ठीक है। तो हम लोग इसके थियरी पढ़ेंगे। स्टीवर्डशिप थियरी क्या होती है, द स्टीवर्डशिप थियरी स्टेट्स दैट थ्रू फर्म परफॉर्मेंस अ स्टीवर्ड प्रोटेक्ट्स द मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ऑब्वियसली एक स्टीवर्ड थियरी क्या होती है, यहाँ पे स्टीवर्ड किसको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये इनका काम कैसा है, इस कंपनी का फर्म परफॉर्मेंस, एक कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है वो पता चलता है कि स्टीवर्ड प्रोटेक्ट्स द मैक्सिमाइज एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ। स्टीवर्ड्स आर द कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर। कौन होते हैं स्टीवर्ड्स, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्लू लाइन में दिखा, who work for the benefit of the shareholders, प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स, राइट। ये बेनिफिट की शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं और इंक्रीज द प्रॉफिट्स। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अचीव सक्सेस स्टीवर्ड्स आर सेटिस्फाइड एंड मोटिवेट। ऑब्वियसली जब ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और ये जब सक्सेस पाते हैं ना, तो इनके मन में एक सेटिस्फाई होती है कि हाँ मैंने सही किया है, मैंने काम अपना परफेक्ट किया, और मोटिवेटेड होते हैं। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव्स एक्टिंग मोर इंडिपेंडेंटली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स रिटर्न। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं यहाँ पे, और इंडिपेंडेंटली कुछ भी हो, ओके, एग्जीक्यूटिव्स एक्टिंग मोर इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव तो इंडिपेंडेंट एक्ट करते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते कोई भी डिसीजन लेना हो तो इसलिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स रिटर्न, तो ये शेयर होल्डर्स रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए कोई भी डिसीजन लेना हो तो इंडिपेंडेंटली लेते हैं यहाँ पे, और एम्प्लॉयज़ को भी ये लोग एड ऑन करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर जॉब्स एंड वर्क हार्ड एट देम। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और इनको वर्क हार्ड करेंगे एट देम, इनके वर्क अच्छा हो, इनका जॉब अच्छा हो। तो
आई होप आपको स्टीवर्डशिप थियरी समझ में आया होगा। यहाँ पे मेन की पॉइंट्स कौन से हैं एक बार अब कर देती हूँ। फर्म परफॉर्मेंस के बेस पे पता चलता है कि भाई ये कितना शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे स्टीवर्ड्स कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स। ये सक्सेस अचीव करते हैं तब इनको मोटिवेटेड फील होता है, राइट। और इट एम्फोसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी ये इंपॉर्टेंस देते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग किसके लिए काम करते हैं, तो एक मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स रिटर्न। तो यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की जॉब के ऊपर, ताकि ये अच्छा काम कर सके और अच्छा इनको रेम्युनरेशन हो या फिर कुछ भी रिवॉर्ड हो, ये इनको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टीवर्डशिप थियरी। नेक्स्ट विल रीड स्टेक होल्डर थियरी। तो स्टेक होल्डर थियरी क्या होती है? स्टेक होल्डर थियरी इंक्लूड्स मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी टू द वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे स्टेक क्या होता है आपको पता है? स्टेक होल्डर थियरी हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंक्स, फिर और कौन से कस्टमर्स हो गए, ये गवर्नमेंट हो गए, राइट। ये सब हाँ, इनको सबको मिला के हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर थियरी इंक्लूड मैनेजमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू अ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। इनके किसके लिए? स्टेक होल्डर के लिए। इट स्टेट्स दैट मैनेजर्स हैव अ नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप टू सर्व इन देयर ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ एंड द बिजनेस पार्टनर। सो मैनेजर्स का क्या नेटवर्क बड़ा होता है, ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि मैनेजर्स को एग्जीक्यूटिव किसके साथ डील करना पड़ेगा? सप्लायर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ हो गया, राइट, शेयर होल्डर्स के साथ हो गया, इन सब के साथ इनको डील करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या एक नेटवर्क बना लेते हैं। नेटवर्क इनके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। द थियरी फोकस ऑन, किस पे ये थियरी फोकस करती है? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू विथ नो वन सेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम टू बी मोर इंपॉर्टेंट दैन द अदर्स। तो यहाँ पे इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है कि मैनेजरल डिसीजन सही से लेना और स्टेक होल्डर इंटरेस्ट हैव, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट पे, इनके इंटरेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू विथ नो वन सेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के हित में काम करना। ऑब्वियसली आप देखो, जब हम लोग कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर्स कोई हमारे कंपनी का प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं, राइट। या फिर एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय कोई यहाँ पे हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएंगे नहीं, ओके। फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट अच्छा ना हो तो फिर अगर हम शेयर होल्डर्स को रिटर्न अच्छा नहीं देंगे तो वो हमारे इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे क्या करना, मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन लेना है दे फोकस ऑन डिसीजन, कंपनी के डिसीजंस हो वो सही से लेना है और किसके इंटरेस्ट पे लेना है? स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट पे। सो दैट इज़ द मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर्स, ओके। तो यहाँ पे मेन 3 पॉइंट कौन से हैं यहाँ पे ध्यान रखने के लिए? अकाउंटेबिलिटी, रिलेशनशिप मेंटेन करना, फिर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। तो ये फोकस ऑन मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो आई होप स्टेक होल्डर थियरी आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नेक्स्ट इज रिसोर्स डिपेंडेंसी थियरी। तो रिसोर्स डिपेंडेंसी थियरी क्या होता है? रिसोर्स डिपेंडेंसी थियरी एग्जामिन द रूल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स the role of board of directors in ensuring that the firm has access to the resource it requires. So resource theory, resource मतलब क्या है? हमारी कंपनी में जो भी रिसोर्स चाहिए उसके बारे में है यहाँ पे। तो ये क्या एग्जामिन करती है? ये रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बिहेव करता है, इनका रोल क्या है, वो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ensuring that firm has access resource, मतलब एक फर्म के पास ना सब तरीके का रिसोर्स वो चीप रेट में कैसे मिलेगा, वो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है यहाँ पे। इट स्टेट्स दैट through their connections to the outsiders world, directors play an important role in providing or securing essential resources to an organization. Obviously बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस होते हैं, सप्लायर्स के साथ होते हैं, गवर्नमेंट के साथ होते हैं, राइट। तो ये क्या करेंगे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ? तो फिर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि रिसोर्स लाने में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इनका बहुत मुख्य इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो क्या हिंदी वर्ड बोल दिया, ऐप टू हिंदी वर्ड सही से नहीं बोला, ठीक है। इनका मुख्य काम यही होता है कि भाई यहाँ पे ये रिसोर्स को मतलब चीप रेट में रिसोर्सेज अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए। द प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एज वेल एज द फर्म सर्वाइवल। तो यहाँ पे जैसे रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना और चीप रेट में लाना, तो ये सब क्या हो गया है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो इससे हमारी कंपनी, जो भी इनकी कंपनी होगी, वो सर्वाइवल करेगी मार्केट में, राइट। चीप रेट में लाके और यहाँ पे
और एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर कोई भी रॉ मटेरियल्स हो गया, ये सब चीप रेट में लाएंगे तभी इनकी कॉस्ट ऑफ पर कॉस्ट रेट, या फिर आप मान सकते हो जैसे जो भी कॉस्ट रेट है एक प्रोडक्ट की वो कम होगी, राइट, जब चीप रेट में आएगी। तो ऑब्वियसली इनको एक क्या करेंगे, फिर चीप रेट में ही फाइनल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेंगे। जब इनकी रिसोर्स जो रॉ मटेरियल्स है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट फिनिश होके आएगा, फिनिश प्रोडक्ट्स, उसकी भी प्राइस हाई रहेगी, राइट। तो इसलिए इन जो भी रिसोर्सेस है जो मिल रहे वो चीप रेट में लाएंगे, तो ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइज मार्केट में भी चीप रेट में ही देंगे। तो हैज़ ए फर्मल्स ये सब क्या करेंगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, फर्म सस्टेन करेगा मार्केट में, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन, स्किल्स, एक्सेस टू द की स्टेक होल्डर्स सच एज सप्लायर्स, बायर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड सोशल ग्रुप्स एज वेल एज लेजिटिमेसी टू द कंपनी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके स्किल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। एक इसमें जो भी एक्सपर्ट्स है, इंफॉर्मेशन ये अपने को देते हैं, फिर एक्सेस द की स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे जो भी ये जिनको सप्लायर्स की ज़रूरत है, सप्लायर्स की ध्यान रखते हैं, बायर्स हो गए, कौन कौन अपने बायर्स है, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स है, सोशल ग्रुप्स के लिए कुछ करना हो, सब ये कंट्रीब्यूट करते हैं। CSR में कंट्रीब्यूट करना हो अपनी कंपनी, तो फिर ये सब किसका मेन रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इनसाइडर्स, बिजनेस एक्सपर्ट, सपोर्ट स्पेशलिस्ट एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल आर द 4 टाइप्स ऑफ द डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स में कौन कौन होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनसाइडर्स के अपने कंपनी के अंदर बिजनेस एक्सपर्ट्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, फिर कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल्स हो गए। तो यहाँ पे इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे डायरेक्टर्स के होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको रिसोर्स डिपेंडेंसी समझ में आया होगा। नेक्स्ट विल सी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थियरी। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है यहाँ पे आपको पता होगा, कॉस्ट के ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब कॉस्ट के रिगार्डिंग होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट theory, a company has a number of contracts either within the company or with the market, right, through which it is generates value. Obviously एक कंपनी जब ट्रांजैक्ट करेगी तो उनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, राइट। तो विद इन द कंपनी होगा या फिर आउटसाइड विद द मार्केट हो गया, तो विच जनरेट द वैल्यू क्रिएट करेगी। तो ईच कॉन्ट्रैक्ट विद द एक्सटर्नल पार्टी हैज़ अ कॉस्ट अटैच टू इट विच इज रेफर्ड टू एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ ना कुछ तो वैल्यू कॉस्ट अटैच होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलेंगे। हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मार्केट फॉर ट्रांजैक्शन इज हायर, द कंपनी विल कंडक्ट द ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अपन देखेंगे, आपको पता होगा अगर कोई ये कंपनी मशीन खरीदनी हो तो या तो फिर वो इसको बाई कर लेगी या तो फिर इसको लीज पे ले लेगी, राइट, लीज पे ले लेगी या फिर रेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर आपको पता है एक प्रोडक्ट हमें जो भी बनाना हो, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट, वो अगर हमें मशीन बाई करके बना रहे तो हमें प्राइस हाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को या तो फिर उस मशीन को लीज पे ले लेंगे या तो फिर हम उस प्रोडक्ट को बाहर से कहीं से बनवा के फिर हम उसको थोड़ा बहुत ऑल्टरेट करके कर देंगे, मार्केट में ला देंगे। बट कभी कभी जो बाइंग मेथड है जो वो हमें अगर कॉस्ट कम दे रही है, इससे ज़्यादा मार्केट से हम बाहर लेके आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम खुद ही बनाने लग जाएंगे, राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग, ठीक है, ठीक है, क्लोथ देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम रेडीमेड्स में जीन्स बना रहे हैं, तो जीन्स का कॉस्ट हम लोग ना बाहर से लेके आ रहे हैं, फिर अपना ब्रांड डाल रहे हैं, वो हमें ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम खुद ही अपनी ओन ब्रांड की जीन्स बनाने लग जाए तो हमें उसकी कॉस्ट कम लग रही है। हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली हम क्या डिसीजन लेंगे कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो जाए अपनी कंपनी की, है ना। तो ऐसे डिसीजंस लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थियरी। तो एक कंपनी ये पूरा ध्यान रखती है कि भाई कौन सी, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हायर हो रही है अगर मार्केट से लाते हुए, तो फिर वो खुद अपनी ट्रांजैक्शन कर लेगी, ठीक है। सो आई होप आपको एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट थियरी समझ में आया होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वैल्यू अटैच होते हैं, राइट, कॉस्ट अटैच होता है। अगर कॉस्ट हायर हो तो ये क्या करेंगे, खुद में ही ट्रांजैक्शन करने लग जाएंगे, मतलब खुद में प्रोडक्शन कर लेंगे, या फिर कम हो वैसा वर्सा हो तो ये मार्केट से लेना चालू कर देंगे, राइट, ओके।
नेक्स्ट इज पॉलिटिकल थियरी। तो पॉलिटिकल थियरी क्या होता है? रादर दैन परचेजिंग वोटिंग पावर, पॉलिटिकल थियरी प्रोसेस दैट शेयर होल्डर्स डेवलप वोटिंग सपोर्ट। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स, ये पॉलिटिकल थियरी में क्या कह रहे हैं? वोटिंग पावर परचेज करने से बदले पॉलिटिकल थियरी प्रोसेस दैट शेयर होल्डर्स डेवलप वोटिंग सपोर्ट। यहाँ पे शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो और वोटिंग पावर शेयर होल्डर्स की ज़्यादा मिले। इट एम्फसिस हाउ गवर्नमेंट फेवर डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पावर, प्रॉफिट्स एंड प्रिविलेज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट किसके फेवर पे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। और प्रॉफिट्स के कितना प्रॉफिट है, कितने यहाँ पे कॉर्पोरेट पावर है इनका कंपनी का, तो वो यहाँ पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड सब पता चलता है कि भाई इस कंपनी के कितना पॉलिटिकल पावर है, कितने शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, शेयर होल्डर्स कितने हैं, ये सब हमें किससे पता है? पॉलिटिकल थियरी से पता चलता है, ठीक है। सो आई होप ये नॉर्मल है। वोटिंग पावर से हमें वोटिंग पावर परचेज करने के लिए शेयर होल्डर को सपोर्ट करना है। और यहाँ पे एम्फोसाइज हाउ गवर्नमेंट फेवर, गवर्नमेंट किसके फेवर में है वो पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा पॉलिटिकल थियरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। एंड इवन आई हैव in the comment section box I have put my telegram channel link also. Do check that also. Thank you everyone.